Hello, hello, class 12 biology students. Good afternoon. Good afternoon, biology students. I welcome you all in the second session of chapter 6 today on 16th of May 2020. The chapter 6 is molecular basis of inheritance. I am Monica Malhotra, PGT biology from KV Pushpihar, New Delhi. I welcome all biology students of class 12th in second part of chapter 6, molecular basis of inheritance. So today we are going to study ahead of the experimentation we studied yesterday. So the quest of knowing the genetic material was going on that we studied yesterday, and we also discussed about two basic experiments done by Griffith, Avery, McLeod, and McCarthy. These were the two set of experiments we discussed. So today, first of all, we'll do a quick recap of the yesterday's session. Yes, you can see the questions in front of you. These questions you have to answer. I have also given you a attendance form today in which you can write your queries or comments. So question 1 is, the mice infected with the dash strain of Streptococcus bacteria die from pneumonia infection. So which strain is the question? The mouse. Yes, I can see students are still joining in. Yes, Minati Meher, Geeta, Sunita. Yes, I can see Rasna, Vatsal, Danishta, Anamika, Rohan. Yes, Bimlesh. Yes, you all are still joining in. Okay, call your friends and for the live session. Otherwise, you can later watch the recorded session also. Okay, so quick recap में पहला question है, the mice infected with the dash strain of Streptococcus bacteria which was virulent in nature die from pneumonia infection. कौन से strain से इनकी infection से death हुई थी? इसका आंसर आपको देना है. Yes, the correct answer is S strain. Yes, Nimisha has answered correct first of all. S strain. Yes, very good. Neha, Hariom, Himanshu, Yash. Yes, Nandini. Yes, you all are correct, beta. बिल्कुल सही. Geeta, S strain is the correct answer. Dhanishta, Himanshu, Sangeeta, very good. ज्योतिका, स्मूथ स्ट्रेन बिल्कुल सही है. राजकुमार बिल्कुल सही. सही आंसर दे रहे हैं आप. प्रभाती, यस. नो नो, अभी आप नेक्स्ट पे पहुंच गए प्रभाती. You are Prabhati Lal Pingodia has given answer to the second question now. Second question goes like this. So S strain first का answer है. Second question, Avery, McLeod and McCarthy observed that digestion of heat-killed S strain Streptococcus bacterial cells with dash enzyme did inhibit transformation. अब इसमें R strain का transformation कब inhibit हो गया? कौन से एंजाइम से जब ट्रीटमेंट किया गया हीट किल्ड एस्ट्रेन का? आपको उस एंजाइम का नाम बताना है. यस, सो प्रभाती has already given the correct answer. Then DNase enzyme is the correct answer. DNase. Neha has also given correct answer. Very good. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं हम. निमिषा has given the correct answer. DNase enzyme is the correct answer. Okay, what DNase does? It digests the DNA. जब DNA ही नहीं रहा तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता? ओके, तो तभी ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया जब डीएनए एंजाइम यूज किया गया. राइट. सो क्वेश्चन 3, the S strain of Streptococcus bacteria is virulent because of the presence of, yes, because of the presence of, yes, Prabhati Lal is again the first one to give answer. It is the polysaccharide coat or the polysaccharide capsule. Very good. The S strain of Streptococcus bacteria are smooth because they have polysaccharide capsule over them. That makes them virulent. Okay, immune cells जो है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते रैट्स के, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं वो. So S strain of Streptococcus bacteria is virulent because of the presence of, yes, polysaccharide capsule. Very good. Question 4. Griffith concluded that dash strains of bacteria had somehow been transformed due to the transfer of genetic material in them. बताइए कौन से स्ट्रेन के बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए और उन्होंने निमोनिया कॉज कर दिया? Which was the, what was the strain of bacteria which got transformed? Yes,
ट्रांसफॉर्म कौन से बैक्टीरिया हुए, उनका स्ट्रेन कौन सा था जो ट्रांसफॉर्म हुए? Yes, the correct answer is again by Prabhati Lal first. R strain is the correct answer. Tanishta is also given correct answer. Sunita, Satvik, yes, Rasna, Neha, IC Poonam, Sangeeta, Prabhat, बिल्कुल सही. राजकुमार, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने बेटा. ज्योतिका, नंदिनी, आफरीन, बिल्कुल सही. विमलेश, R strain is the correct answer. Very good. Vatsal is also correct. ठीक है, it is R strain. चलिए, ये तो था रिकैप सेशन. मैंने इनके आंसर्स भी यहाँ पोस्ट कर दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए. ठीक है, तो आंसर्स यहाँ से देख सकते हैं आप. नाउ वी कम टू द टुडेज सेशन. Today's topic is again the quest for knowing the molecule which acts as genetic material. पहला इस चेन में पहला एक्सपेरिमेंट हमने कौन सा पढ़ा? ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट. सेकंड क्या पढ़ा हमने? द एक्सपेरिमेंट जिसमें which was done by Avery, McLeod and McCarthy, जिसमें उन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर स्टडी किया और पता लगा लिया कि वो मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल है और कोई नहीं, डीएनए ही है. बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे हैड दिस स्टॉन्च बिलीफ कि ये कोई प्रोटीन है, डीएनए नहीं हो सकता. इसीलिए एवरी, मैक्लॉड एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मानने से उन्होंने मना कर दिया. Okay, they were not convinced that DNA could be the genetic material. Then came Hershey and Chase. Alfred Hershey and Martha Chase. In 1952, they did such an experiment which was the final proof that yes, DNA is the ultimate genetic material. जो मॉलिक्यूल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास करता है, ट्रेट्स के करेक्ट की इंफॉर्मेशन पास करता है, वो और कोई नहीं, डीएनए ही है. ये किसने सबको यकीन दिलाया? हर्शे एंड चेज ने, बाय देयर famous experiment which we are going to study today. So what they used in the experimentation, which organism did they use as experimentation material? They used a virus. Okay, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. So such a virus that infects the bacteria is called a bacteriophage. क्या बोलते हैं ऐसे वायरस को? बैक्टीरियोफेज. आपने इसके बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा है. ये डायग्राम से कुछ याद आया बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर? So this is the bacteriophage. इसमें ये इसका हेड है, ये शॉर्ट सी नेक का रीजन है, ये शीथ है और नीचे इसके टेल फाइबर्स हैं. ओके, याद आया? जो हेड रीजन था उसमें क्या होता था? उसमें जेनेटिक मटेरियल है अंदर और बाहर उसके एक क्या है? कोट है. ठीक है, प्रोटीन कोट. तो ये बैक्टीरियोफेज का ये एक बाहर प्रोटीनिशियस कोट है मेड अप ऑफ प्रोटीन और अंदर इसके जीनोम. जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका? डीएनए. सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज. So the bacteriophage attaches to the bacterium क्योंकि उसको बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करना है, तो इन्फेक्शन के लिए उसको बैक्टीरियम के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा. तो कैसे अटैच होता है बैक्टीरियम के साथ बैक्टीरियोफेज? विद द हेल्प ऑफ दीज टेल फाइबर्स. आपने क्लास 11 में भी इनके बारे में पढ़ा है. ठीक है, okay, so the bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. ये पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज ये ई कोलाई बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया के आसपास के कैप्सूल के ऊपर अटैच हो जाता है, उसके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द टेल फाइबर्स. और ये इसका प्रोटीन कोड, पूरी बॉडी, टेल फाइबर्स, ये सिर्फ अटैचमेंट का ही काम करते हैं. ये सिर्फ बाहर ही रह जाते हैं बैक्टीरिया के. बैक्टीरिया के अंदर क्या जाता है इसका? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल. तो बैक्टीरियोफेज अपने आप को बैक्टीरियम की बॉडी से अटैच करने के बाद टेल फाइबर से अटैच करता है और फिर अपने डीएनए को बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर देता है, रिलीज कर देता है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इन्फेक्शन. एक बार बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियम के अंदर पहुंच गया तो हम कहेंगे कि वो बैक्टीरियम इन्फेक्ट हो गया है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है. किसका इन्फेक्शन हो गया है? इस बैक्टीरियोफेज का, इस वायरस का इन्फेक्शन हो गया है. राइट? आपको पता है वायरस, तो अब आप सब जानते हैं वायरस क्या होते हैं. दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. उनको अगर अपनी प्रोजेनी क्रिएट करनी है, अगर उनको रिप्रोड्यूस करना है, तो रिप्रोडक्शन के लिए उनके अपने अंदर कोई मशीनरी नहीं है. दे नीड मशीनरी ऑफ सम होस्ट. राइट? So similarly, this bacteriophage, if it has to divide, if it has to multiply, it has to give rise to its progeny, then it needs some host, right? So that host is the bacterium. Bacteriophage infects the bacterium, right?
ये अब बैक्टीरियम से अपने आप को अटैच करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियम के अंदर रिलीज कर देता है। इसके जेनेटिक मटेरियल में सारी इंफॉर्मेशन है कि अगली जनरेशन के फाज पार्टिकल्स, वायरस पार्टिकल्स कैसे बनाने हैं, राइट? सो इट यूजेस द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम to multiply itself, to raise its progeny, right? That is what viruses do. ठीक है? They need a host. They utilize the machinery of the host to create its progeny. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. ठीक है? एक बार बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए बैक्टीरियम के अंदर डाल दिया तो बैक्टीरियम की पूरी बॉडी को ये रेगुलेट करता है, ये एक तरह से डायरेक्ट करता है अपने फाज पार्टिकल्स और वायरस पार्टिकल्स बनाने के लिए। ठीक है? Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that enters the bacteria. अब उन्होंने फाज को क्यों चूज किया? क्योंकि शक की सुई कौन से दो मॉलिक्यूल्स पे थी कि वो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। एक डीएनए जो कि एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने प्रूव किया था, और दूसरा मैक्सिमम साइंटिस्ट की जो लॉबी थी वो कह रही थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो इसीलिए हर्शे एंड चेज दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफाज, बिकॉज बैक्टीरियोफाज में ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। इनका प्रोटीन कोट, इनका जो बाहर का कोट है प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। और ये दोनों ही बायोमोलिक्यूल्स जो है इनके ऊपर क्वेस्ट चल रही थी, इनके ऊपर खोज चल रही थी कि इन दोनों में से जेनेटिक मटेरियल असल में क्या है। Okay, so Hershey and Chase they designed their experiment in such a way कि दोनों मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो जाएं, प्रोटीन और डीएनए इन दोनों पे एक्सपेरिमेंटेशन की जाए और फाइनली पता लगाया जाए कि इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन में इन दोनों में से कौन पहुंचाता है, वही जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट? चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने कैसे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर को डीएनए और प्रोटीन के यूज किया, उसको उसके डिफरेंसेस को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए, राइट? हमें मालूम है कि डीएनए और प्रोटीन का बायोकेमिकल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है। डीएनए इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की चेन जो होती है वो, न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक सिंगल यूनिट है डीएनए के चेन का, ठीक है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक हो जाते हैं, दे फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन व्हिच इज कॉल्ड डीएनए, राइट? ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में, राइट? ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स अ, हर एक न्यूक्लियोटाइड जो हर एक बेसिक यूनिट है डीएनए का, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है उसका? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जो इसको नेगेटिव नेचर प्रोवाइड कर, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, राइट? और शुगर ग्रुप, शुगर ग्रुप कौन सा है भाई? डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लास 11 में पढ़ के आए हो आप, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, उसी का रिवीजन चल रहा है, ठीक है? तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड थर्ड इज द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कैन बी ईदर प्यूरीन और पिरिमिडीन, याद है? ठीक है? 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं? एडेनिन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है? एडेनिन, थायमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, तो ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस है। तो अब देखिए इसका मतलब डीएनए में खास चीज क्या है? डीएनए में जो फॉस्फोरस है, फॉस्फेट ग्रुप, ये बहुत ही यूनिक है, ठीक है? पहले हम प्रोटीन में भी जान लेते हैं प्रोटीन में क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ईच प्रोटीन और पेप्टाइड, आपको पता है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स। एक अमीनो एसिड दूसरे से ज्वाइन करता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एक लंबी चेन बन जाती है। ये लंबी चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, because the adjacent amino acids they are joined by peptide bond। इसके बारे में आपने चैप्टर 9 में क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स एडजेसेंट अमीनो एसिड्स के बीच में है, इसीलिए इसकी चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और ऐसी ही बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट? अब हर एक प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो अबंडेंटली पाए जाते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनो क्यों। देखो आपको ये मालूम है कि नेचर में 20 अमीनो एसिड्स हैं जो मिलकर सारे प्रोटीन बनाते हैं,
ठीक है, naturally how many amino acids are there? 20 amino acids are there, and these 20 amino acids they combine in different permutations and combinations to form variety of proteins found in plants, animals and microbes. ठीक है, यूनिवर्सल है ये प्रोटीन्स, राइट? इनके जो कोडिंग है अमीनो एसिड की वो भी सभी ऑर्गेनिजम्स में यूनिवर्सल है। तो वो 20 अमीनो एसिड्स में से 2 अमीनो एसिड बहुत ही स्पेशल है। क्या है ये? मेथियोनिन एंड सिस्टीन। Out of 20 amino acids, I am talking about only these two, methionine and cysteine. What is so special about them? These are sulfur-containing amino acids. बाकी के 18 amino acids में सल्फर नहीं है, सिर्फ यही दो amino acids, methionine और cysteine, इसमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन से दो अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन्स में पाए जाने वाले जिनमें सल्फर है? सिर्फ मिथियोनिन और सिस्टीन। ठीक है, तो भाई इसमें क्या ग्रेट बात है? इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों अमीनो एसिड्स ही बहुत ही स्पेशल हैं और हर प्रोटीन चेन में पाए जाते हैं। क्या स्पेशलिटी है इनकी? इनकी स्पेशलिटी ये है दैट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन चेन्स दे स्टार्ट विद मिथियोनिन अमीनो एसिड। दिस इज द लीडर अमीनो एसिड। ठीक है, ये स्टार्ट कोडोन फॉर्म करता है प्रोटीन चेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन चेन्स दे बिगिन विद मिथियोनिन। ठीक है, तो सिस्टीन का क्या काम है भाई? सिस्टीन जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का एक स्टेबल स्ट्रक्चर, वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सिस्टीन इज आल्सो फाउंड इन all the proteins. ठीक है, methionine and cysteine they are present in almost all proteins, so they are very significant for the structure of proteins. तो उसने ऐसे दो अमीनो एसिड चुने जो ऑलमोस्ट सभी प्रोटीन्स में पाए जाते हैं और जिनमें एक स्पेशल एलिमेंट प्रेजेंट है जो किसी और अमीनो एसिड में नहीं होता, दैट इज सल्फर। ठीक है, अब इन दो प्रॉपर्टीज को यूज किया उन्होंने डीएनए और प्रोटीन में डिफरेंशिएट करने के लिए। भाई अगर ये पता लगाना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन, तो उनमें कोई तो बायोकेमिकल डिफरेंस होना चाहिए ना जिसको लेकर हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो बायोकेमिकल डिफरेंस क्या लिया हर्शे एंड चेज ने? डीएनए में उसने यूनिक एलिमेंट लिया फास्फोरस, जो सिर्फ डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में उसने यूनिक एलिमेंट लिया सल्फर। ठीक है, सल्फर सिर्फ प्रोटीन्स में पाया जाता है, डीएनए में नहीं होता। So these two elements are unique to these biomolecules. Phosphorus is unique to DNA and sulfur is unique to proteins. This basic biochemical aspect they used in their experimentation. ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं कि किया क्या उन्होंने, इतनी कहानी के बाद उन्होंने आखिर किया क्या। हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता दूं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। जितने एग्जाम्स में सिलेबस में ये चैप्टर आएगा, मान के चलो कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। सिर्फ डायग्राम 3 मार्क्स में और पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ डायग्राम 5 मार्क्स में। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस experiment. So just carefully listen and understand the concept. Hershey and Chase experiment. Now what they did, what Hershey and Chase did, they grew some viruses, that is the bacteriophage, on a medium that contained radioactive phosphorus, and then they grew some more bacteriophage on another type of medium that contained radioactive sulfur. देखो क्या किया इन्होंने, ये इन्होंने दो मीडियम क्रिएट किए। एक मीडियम में इन्होंने क्या डाला, न्यूट्रिएंट मीडियम में। देखो हम कभी भी अगर किसी वायरस को या उसको बैक्टीरिया को या वायरस को कल्चर करते हैं तो उसके लिए हम कल्चर मीडियम बनाते हैं। ठीक है, तो कल्चर मीडियम कैसे बनाया उन्होंने? वायरस तो नॉन लिविंग है, अगर सिर्फ वायरस को हम कल्चर मीडियम में डालेंगे तो वो तो डिवाइड करेगा नहीं, है ना, वो तो डेवलप होगा नहीं। तो इसीलिए ये ई कोलाई है, ई कोलाई के ऊपर बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन कराया गया पहले, और फिर ई कोलाई समेत बैक्टीरियोफाज को न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया गया। ठीक है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में, ये फर्स्ट न्यूट्रिएंट मीडियम जो है, इसमें उन्होंने फास्फोरस की जगह क्या यूज किया? उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15, और एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 30। ठीक है, सो यहाँ 30 आना चाहिए, लेकिन as Hershey and Chase used radioactive isotope, so it has got atomic mass 32. Instead of 30, it is having 32. ठीक है, तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप फास्फोरस का इट इज P32। ठीक है, सिमिलरली अब इस P32 के मीडियम को जब उन्होंने क्रिएट किया, इसमें उन्होंने बैक्टीरियोफाज की प्रोजेनी को रेज किया। अब ऐसे में जो बैक्टीरियोफाज बने, उनके अंदर क्या हुआ?
उसके अंदर जो डीएनए बना, क्योंकि आपको पता है फास्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, फास्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो ऐसे बैक्टीरियोफाज में जो नया डीएनए बना, दैट वाज रेडियो एक्टिव एंड इट हैड आइसोटोप P32, ठीक है। तो इनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए जनरेट हुआ। क्यों रेडियो एक्टिव डीएनए जनरेट हुआ? क्योंकि मीडियम में ही जो फास्फोरस था वो रेडियो एक्टिव नेचर का था, P32 था। तो इन्होंने P32 को ही एक्वायर किया, P32 को ही यूज किया अपना डीएनए मैन्युफैक्चर करने के लिए, और P32 रेडियो एक्टिव डीएनए इन T2 बैक्टीरियोफाजेस में डेवलप हो गया। सो इस बैक्टीरियोफाज का नाम है T2। T2 phages, bacteriophages with radioactively labeled DNA were formed as a progeny। समझ में आ गया कैसे इन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफाज क्रिएट किए। अब सिमिलरली इन्होंने, हर्शे एंड चेज ने एक और मीडियम बनाया। इस मीडियम में क्या रखा उन्होंने? इसमें रेगुलर सल्फर ना डाल के, नॉर्मली सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, एटॉमिक मास कितना होता है? 32, बट इंस्टेड ऑफ 32 they instead of the normal isotope they took radioactive isotope, heavy isotope। heavy isotope में एटॉमिक मास कितना है? 35। So instead of using S32 they used S35 which was radioactive isotope of sulfur। तो जब न्यूट्रिएंट मीडियम में S35 डाल के न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया गया और वहां ये बैक्टीरियोफाज की प्रोजेनी को रेज किया गया, तो बैक्टीरियोफाज जो नए बने, न्यू जो ऑफस्प्रिंग्स बने, नेक्स्ट जनरेशन आई बैक्टीरियोफाज की, वो कौन से एलिमेंट को उन्होंने यूज किया? S35। S35 उनके कौन से बायोमोलिक्यूल में ऐड हो गया? प्रोटीन्स में ऐड हो गया, क्योंकि सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोटीन बने प्रोजेनी के, बैक्टीरियोफाज की प्रोजेनी जो क्रिएट हुई, वो प्रोटीन्स, उनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर था, ठीक है। S35 वाले प्रोटीन थे, राइट, दे वर रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। T2 phages with radioactively labeled protein was formed, ठीक है। तो इसका मतलब इनका ये प्रोटीन कोड जो था, इनका डीएनए तो नॉर्मल है क्योंकि फास्फोरस तो नॉर्मल ही था इसके अंदर, लेकिन जो प्रोटीन कोड इनके आसपास बनता है, दैट वाज रेडियोएक्टिव इन नेचर बिकॉज इट वाज मेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव सल्फर S35। समझ में आ गया आपको? तो कुछ जो बैक्टीरियोफाज है हर्शे एंड चेज ने वो ऐसे क्रिएट किए जिनके अंदर डीएनए रेडियोएक्टिव था, प्रोटीन कोड नॉर्मल था, और कुछ बैक्टीरियोफाज उन्होंने ऐसे तैयार कर लिए जिसमें प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव था और डीएनए नॉर्मल था, ठीक है। समझ में आ गया आपने कैसे क्रिएट किए ये? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, व्हाट दे डिड। जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम, इट इज सेल्फ लेबल्ड, जस्ट ऑब्जर्व इट वंस। इस डायग्राम में आपको 3 स्टेप्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट भी सिर्फ 3 ही स्टेप्स में ओवर हो गया, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन, दूसरे स्टेप में ब्लेंडिंग, थर्ड स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम देखते हैं ये है क्या। स्टार्ट करेंगे हम शुरू से। ये इन्होंने ये एक मीडियम लिया है, इस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया भी डाल दिए और क्या डाल दिया? बैक्टीरियोफाज भी डाल दिया, ठीक है। इन्फेक्शन तो तभी होगा ना जब बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया के पास लाया जाएगा। सो इन द सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम दे एडेड बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, एंड आल्सो द बैक्टीरियोफाज को भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 2 प्रकार के बैक्टीरियोफाज बनाए थे। One type of bacteriophage which had radioactive DNA in it because it was developed in nutrient medium of P32, रेडियोएक्टिव फास्फोरस के मीडियम में बनाए गए थे, तो इसीलिए इसका डीएनए जिसमें फास्फोरस होती है वो रेडियोएक्टिव बन गया। ये दूसरे टाइप के बैक्टीरियोफाज है। इसमें इसको किसमें जनरेट किया गया था? एक ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर डाला गया था। S35 was there in the nutrient medium and sulfur being a component of protein, it made the protein coat of the bacteriophage radioactive। यहाँ रेडियोएक्टिविटी किसमें आई? प्रोटीन कोट में आई। यहाँ रेडियोएक्टिविटी किसमें आई? डीएनए में आई। ये 2 टाइप के बैक्टीरियोफाज है। इन दोनों को यूज करके सेम 3 स्टेप करेगा ये हर्शे एंड चेज ने, तीनों स्टेप सेम किए और रिजल्ट से पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल आखिर कौन है, प्रोटीन या डीएनए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे पता लगाया हर्शे एंड चेज ने कि आउट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन विच इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मैं ये वाली साइड आपको बताऊंगी जिसमें ऐसा बैक्टीरियोफाज है जिसका डीएनए रेडियोएक्टिव है, राइट। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरिया ऐड किए और साथ ही
क्या ऐड कर दिया, बैक्टीरियोफाज ऐड कर दिया, ठीक है। बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज ऐड जब एक ही मीडियम में आ गए तो बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरियम को इन्फेक्ट किया अपने टेल फाइबर से। इट मेड एन अटैचमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया है, लेबल्ड फाजेस। लेबल्ड फाजेस कौन से होते हैं, जो रेडियो एक्टिविटी कंटेनिंग बैक्टीरियोफाज है, उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्फेक्शन करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या चला, ब्लेंडिंग, ठीक है। आई विल यूज दिस डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये डायग्राम, ये आपकी बुक में है डायग्राम, पहले हम इसे समझ लेते हैं फिर हम पीछे चलेंगे दोबारा, क्योंकि आई थिंक ये डायग्राम आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, पहला इन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया है जिसमें रेडियो एक्टिविटी किसमें है, इसमें प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी, जहां जहां लाल दिखेगा वो रेडियो एक्टिव है, याद रखना, रेड कलर इज फॉर रेडियो एक्टिव, राइट। तो इसमें लेफ्ट साइड वाला बैक्टीरियोफाज जो है उसमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ है, इन द प्रोटीन कोट, और अंदर का जो डीएनए है ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था उसको उसकी इन्फेक्शन कराई बैक्टीरियम में। देख रहे हो आप कैसे अपने टेल फाइबर से बैक्टीरियम के सरफेस पे अटैच हो गया है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है। इसने अटैचमेंट कर ली है बैक्टीरियोफाज ने ऑन द सरफेस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरियम, सो नाउ इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन टू द बैक्टीरियम, ठीक है। इन्फेक्शन करते हुए क्या करेगा, ये अपनी पूरी बॉडी तो बाहर ही रखेगा, इसका प्रोटीन कोड टेल फाइबर सब बाहर ही छूट जाएंगे, और ये जो अंदर का डीएनए है ये अंदर इंसर्ट हो जाएगा ई कोलाई में। देख रहे हो आप, ये डीएनए अंदर चला गया, यहाँ डीएनए प्रेजेंट है और यहाँ ये खाली हो गया, ठीक है। अब देखो इसका डीएनए अंदर चला गया है। अब एक डीएनए तो ई कोलाई का अपना है, ठीक है, इसका अपना डीएनए भी होता है ई कोलाई का, सर्कुलर डीएनए, और ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी ई कोलाई के अंदर पहुंच गया विद जॉइंस विद द डीएनए ऑफ ई कोलाई। बैक्टीरियोफाज का डीएनए ई कोलाई के डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है, अटैच हो जाता है, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोपेगेट कर सके, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में तो इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद अब हम ये बैक्टीरियोफाज के जो पार्टिकल्स है उनको हमें ई कोलाई के सरफेस से अलग करना है, ठीक है, ताकि आगे का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो। इसको अलग करने के लिए क्या किया गया, ब्लेंडिंग, ठीक है। इनको ब्लेंड किया गया, इनको मिक्सी में डाल के, जैसे हिलाते हैं हम किसी चीज को ब्लेंड करते हैं मिक्सी में डाल के, बिल्कुल वैसे ही इनको ब्लेंड किया गया, ठीक है। ब्लेंडिंग से क्या होगा, बैक्टीरियोफाज बॉडी विल बी, ये प्रोटीन कोड जो है बैक्टीरियोफाज का जो एम्प्टी हो चुका है, इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ई कोलाई, ये ई कोलाई के सरफेस से सेपरेट हो जाएगा। देख रहे हो आप ब्लेंडिंग में क्या हुआ, ये जो प्रोटीन कोट है बैक्टीरियोफाज का, इट हैज सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ई कोलाई, यही पर्पस है ब्लेंडिंग का। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन। You all know centrifugation. It's a centrifugation machine in which sockets are there, in which we insert the test tubes with lids, ठीक है, और कॉर्क टेस्ट ट्यूब्स को डालते हैं, टेस्ट ट्यूब में जो भी मटेरियल होता है उसको हम रोटेट करना चाहते हैं, उनको सेंट्रीफ्यूग करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर जब हम सेंट्रीफ्यूग मशीन को रोकेंगे तो वो घूमती हुई जो हमारा जो भी मिक्सचर होगा वो भी रुकेगा और धीरे धीरे सेडिमेंट होगा। फिर उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हम चेक करते हैं। देखिए इस डायग्राम में बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेप में इन्फेक्शन कराई हमने, सेकंड में हमने मिक्सी में डाल के ब्लेंड किया, ठीक है। ब्लेंडिंग से क्या हो गया, वायरसेस डिटैच हो गए फ्रॉम द सरफेस ऑफ ई कोलाई। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, इसमें ऐसे सॉकेट्स बनी होती है, टेस्ट ट्यूब डाल दी जाती है इसमें, इसमें हमने ये जो भी मटेरियल था इसको डाल दिया, ठीक है। इस मटेरियल में क्या क्या है, इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया भी है और फेज पार्टिकल्स जो है बैक्टीरियोफाज पार्टिकल्स के एम्प्टीड प्रोटीन कोच भी है, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर डाल दिया और सेंट्रीफ्यूग मशीन में जोर से घुमाया, ठीक है। और जब हम जोर से घुमाते हैं, इसको रोटेट करते हैं, ये मशीन है अपने आप रोटेट होती है, हम इसको ऑफ करते हैं जब, तो इसके अंदर का मटेरियल भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट हो रहा होता है, फिर धीरे धीरे वो सेडिमेंट होता है। फिर उसके सेडिमेंटेशन होने के बाद दो मीडियम्स बन जाते हैं। ये सेडिमेंटेड मीडियम, इसे हम बोलते हैं पैलेट्स, दिस इज पैलेट्स, और जो ऊपर जो सुपरफिशियल मीडियम होता है इसे बोलते हैं सुपरनेटेंट्स। सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर तैर रहा है, पैलेट मतलब जो नीचे बैठ गया है, सेडिमेंट हो गया है, ठीक है। तो एक सेडिमेंटेड रीजन बन जाता है और एक सुपरनेटेंट रीजन बन जाता है इसका, फिर उसकी हम नेचर को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब हमने एनालाइज किया तो पता चला कि जो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिया था
बैक्टीरियोफाज उसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो यहाँ पर आपको जो नए बैक्टीरियोफाज मिलेंगे उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव डीएनए मिलेगा। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन ने क्या किया? द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूग मशीन। या वायरस पार्टिकल्स और जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो सेपरेट मीडियम्स उन्होंने फॉर्म कर लिए। ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया भारी है, वो नीचे बैठ गया, और वायरस एम्प्टी पार्टिकल्स ऊपर बैठ गए। ठीक है, ऊपर तैर रहे हैं। तो हमने जब स्टडी किया तो हमें रेडियो एक्टिविटी यहाँ कहाँ मिली? नीचे मिली। ठीक है। क्यों मिली नीचे? अभी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, ये बैक्टीरियोफाज, इसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है और इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियो एक्टिव है। ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ? हमने इन्फेक्शन कराई। ठीक है, इन्फेक्शन कराई, ये बैक्टीरियोफाज अटैच हुआ ई कोलाई के सरफेस पे। ठीक है, इसका प्रोटीन कोड, टेल फाइबर सब बाहर छूट गए, इसका डीएनए अंदर चला गया। बैक्टीरियोफाज का डीएनए इसने अपने आप को ज्वाइन कर लिया किसके साथ? ई कोलाई के डीएनए के साथ। ठीक है, मर्ज हो गया उसके साथ ही। तो ये पहला स्टेप क्या हो गया? इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? ब्लेंडिंग, शेक किया हमने, इसको मिक्सी में डाल के घुमाया। ठीक है, तो सेकेंड में हमने शेक किया। शेक करने से क्या हो गया? ये जो वायरस के पार्टिकल हैं ये ई कोलाई की बॉडी से अलग हो गए। वो यहाँ दिखाया नहीं है, अलग होते, अलग हो गए हैं। ठीक है, तो सेपरेशन के लिए हमने ब्लेंडिंग की। थर्ड स्टेप में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन वी डिड एट ऑलमोस्ट 10,000 रोटेशंस पर मिनट। इतनी स्पीड से घुमाया। रोटेशंस पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है वो रोटेट करेगी? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एक मिनट में कितनी बार रोटेट करेगी? तो इतनी तेजी से रोटेट करने के बाद क्या हुआ? वायरसेस अलग हो गए, तैर के, वायरस के खाली पार्टिकल तैर के ऊपर आ गए, और ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ गए। ठीक है, तो देखो, ई कोलाई नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, और ये वायरस पार्टिकल्स ये ऊपर है। ये टेस्ट ट्यूब दिखाई हुई है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, after centrifugation two phases are formed. This is the pellet, देखो लिखा है ना पैलेट, PELLET, पैलेट। तो यहाँ भी पैलेट लिखा हुआ है। ये पैलेट है जो नीचे सेडिमेंट हो गया है, और ये सुपरनेटेंट है जो ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे हमने जो बैक्टीरियोफाज लिया था उसका प्रोटीन, उसका जो कोड था वो रेडियो एक्टिव था ना, रेडियो एक्टिव। तो इसीलिए यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ शो होगी? सुपरनेटेंट में या पैलेट में? सुपरनेटेंट में। पैलेट में तो आएगी नहीं रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि इसका प्रोटीन कोड ही रेडियो एक्टिव था, वो तो बाहर ही छूट गया। डीएनए अंदर आया, और डीएनए तो रेडियो एक्टिव है ही नहीं, इसीलिए डीएनए ही ई कोलाई में पहुंचा। ई कोलाई के अंदर देखो नए फेज पार्टिकल्स बन रहे हैं। ये प्रोजनी है फेज पार्टिकल्स की जो ई कोलाई के अंदर बन गई। ठीक है, ये सारी प्रोजनी में कहीं भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वाज देयर इन द protein coat, and protein coat was left outside only. It never entered the E. coli. So supernatant phase, it is radioactive, sorry, it is radioactive, and the pellet phase is non radioactive. समझ में आ गई ये वाली बात? अब हम पैरेलल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उसमें क्या हो रहा है? इसमें जो हमने बैक्टीरियोफाज लिया है उसमें डीएनए इज मेड रेडियोएक्टिव बिकॉज डीएनए इज कंटेनिंग P32, इसके अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस है। तो ये रेडियोएक्टिव डीएनए है, प्रोटीन कोड नॉर्मल है। ऐसे बैक्टीरियोफाज की जब हम ई कोलाई से को इन्फेक्शन कराएंगे, ये देखो इन्फेक्शन हो रही है, तो क्या हुआ? प्रोटीन कोड तो नॉर्मल है, नॉन रेडियोएक्टिव, वो बाहर रह गया। ठीक है, और जो डीएनए अंदर गया दैट वाज रेडियोएक्टिव। सो द fast DNA, radioactive fast DNA, it merged with the DNA of the E. coli and caused the formation. It directed the formation of the bacteriophage particles of the next generation. ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट जनरेशन के बैक्टीरियोफाज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे उनका डीएनए भी रेडियो एक्टिव होगा, यानी कि इस ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई जाएगी। ठीक है, सो इन दिस ई कोलाई the new bacteriophage particles which are produced, they are labeled, means they show radioactivity. और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब हम इसके दोनों फेजेस की स्टडी करेंगे, ये सब कुछ टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ये टेस्ट ट्यूब शो की हुई है, तो जब ये टेस्ट ट्यूब को स्टडी करेंगे हम तो इसके दो फेजेस बन गए, नीचे वाला पैलेट, ऊपर वाला सुपरनेटेंट। तो आप गेस कर सकते होंगे, क्योंकि यहाँ सुपरनेटेंट में तो खाली वायरल कोट्स है, वायरस के कोट्स है, ये तो नॉन रेडियो एक्टिव है, तो सुपरनेटेंट फेज में रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। रेडियो एक्टिविटी विल बी फाउंड इन द पैलेट। ठीक है, इट विल बी फाउंड इन पैलेट। समझ में आ गया आपको कि पैलेट में रेडियो एक्टिविटी मिली है, इसका मतलब
the DNA which has been inserted from the bacteriophage in E. coli, it was showing radioactivity, and this DNA only passed on to the next generation. ठीक है, यहाँ बैक्टीरियोफाज से क्या चीज अंदर आई है, डीएनए अंदर आया है। ये अब साफ पता चल गया कि प्रोटीन नहीं आता है अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर, डीएनए अंदर आता है, क्योंकि डीएनए जब रेडियोएक्टिव था तो वो रेडियोएक्टिविटी पास हो गई नेक्स्ट जनरेशन में। जब प्रोटीन को रेडियोएक्टिव बनाया तो अगली जनरेशन में रेडियोएक्टिविटी पास नहीं हुई। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। पहला स्टेप सबको समझ आ गया, इन्फेक्शन, रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई. कोलाई बैक्टीरियम। सेकंड स्टेप में ब्लेंडिंग की गई। ठीक है, ब्लेंडिंग का पर्पस यही था कि ई. कोलाई के सरफेस से वायरस, खाली वायरस प्रोटीन कोट के पार्टिकल्स को हटाना। As the infection proceeded, the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender. ठीक है, थर्ड स्टेप was centrifugation. Centrifugation में क्या किया? The virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge machine. ये centrifuge machine है, ठीक है। And what was the, ये आपको reasons भी दिए हुए हैं। पहले में इन्फेक्शन हो गई, ब्लेंडिंग की वजह से वायरस डिटैच हो गया ई. कोलाई के सरफेस से। थर्ड स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन ने बैक्टीरियल सेल्स को फोर्स किया कि वो बॉटम में जाकर सिंक हो जाए, सेडिमेंट हो जाए, और सुपरनेटेंट में खाली वायरल कोट्स जो है, वायरल प्रोटीन कोट्स, वो आ जाए। ठीक है, और उसके बाद जब ई. कोलाई बैक्टीरिया को जो पैलेट में आ गए थे उनको एनालाइज किया गया तो ई. कोलाई बैक्टीरिया के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के बैक्टीरियोफाज पार्टिकल्स मिले। ठीक है, और जिस बैक्टीरियोफाज का डीएनए रेडियोएक्टिव था उसी के नेक्स्ट जनरेशन में जो पार्टिकल्स थे उनका डीएनए भी रेडियोएक्टिव पाया गया। जिस बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव था उसकी अगली जनरेशन के बैक्टीरियोफाज में नॉर्मल डीएनए पाया गया, कोई रेडियोएक्टिविटी उस बैक्टीरियोफाज में नहीं मिली, ना प्रोटीन कोड में ना डीएनए में। It shows that DNA is the genetic material, it is the biomolecule which passes its information to the next generation. Is that clear? Okay, बात समझ में आ गई? So conclusion क्या है इसका? DNA is the genetic material that is passed from virus to bacteria, right? ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक का है। Most of the times you are asked explain Hershey and Chase experiment with the help of a diagram, okay, or illustrate the Hershey and Chase diagram, illustrate the Hershey and Chase experiment and write the conclusion. ठीक है, तो आप इलस्ट्रेट जब पूछा जाएगा तो सिर्फ आपने लेबल डायग्राम देना है। अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो आपने डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है, कंक्लूजन जरूर देना है, क्योंकि 1 मार्क सिर्फ ये कंक्लूजन लिखने का ही है। चाहे आपने एक्सप्लेनेशन में कितनी बार कंक्लूजन लिख दिया हो, एक बार लास्ट में कंक्लूजन लिख के जरूर लिखना है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए आरएनए का जब कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं? Hershey and Chase experiment established the fact that DNA acts as the genetic material. In some viruses, RNA is the genetic material. For example, tobacco mosaic virus, QB bacteriophage, इन सबके अंदर क्या है? RNA genetic material है। ठीक है, आपको पता है HIV में भी RNA genetic material है। ठीक है, RNA also performs dynamic function of messenger and adapter. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है RNA के, जो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट फेज में क्या पढ़ेंगे हम? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। वहां दो मॉलिक्यूल्स आरएनए के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन का मैसेज लेकर साइटोप्लाज्म में जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और अडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए को बोला गया है। टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि वो प्रोटीन चेन बनाने के लिए जो भी अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है उसको उठाकर, उसको कैरी करके, अपने साथ अटैच करके राइबोसोम्स पर लेकर जाता है जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो मैसेंजर का काम करता है एमआरएनए, अडेप्टर का काम करता है टीआरएनए। तो आरएनए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी प्ले करता है, राइट? Now question arises, why DNA is the predominant genetic material? Why DNA is the predominant genetic material? तो इसका आंसर क्या है? आंसर लाइज इन द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड्स। इन दोनों का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर कंपैरिजन करें तो हमें साफ पता चल जाएगा कि
डीएनए क्यों प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल है आरएनए की बजाय, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसी जेनेटिक मटेरियल, किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करने या बिहेव करने के लिए क्या प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। कोई भी मॉलिक्यूल जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी एक कॉपी बना सकता है, वो जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है। दैट कैन बी अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आपको पता है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए हैं, और बेसिस में पेयरिंग होती है बेसिस की, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। सबको मालूम है कि एडेनिन पेयर्स विद थायमिन एंड गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन, ठीक है, सबको ये पेयरिंग रूल मालूम है। So because of the rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acids, DNA as well as RNA, they have the ability to direct their duplication. दोनों ही replicate हो सकते हैं, ठीक है, दोनों अपनी कॉपी बना सकते हैं। But proteins and their biomolecules fail to fulfill this criteria. लेकिन आपको पता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जो है ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। कोई भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल का काम करने के लिए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। अब भाई ये कैसे स्टेबल है डीएनए आरएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली, देखिए जरा इनके क्या फीचर्स हैं। देखिए, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के किसी भी स्टेज में, उसको वो किसी भी एज में हो ऑर्गेनिज्म, या उसकी फिजियोलॉजी का कोई भी फंक्शन चल रहा हो, उसमें जेनेटिक मटेरियल को अपनी नेचर, अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द जेनेटिक मटेरियल शुड नॉट चेंज इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो तभी हम उसे केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल मानेंगे, ठीक है। आपने अभी ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, वहां आपने देखा कि एस स्ट्रेन के जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उनको हीट से किल कर दिया था ग्रिफिथ ने, ठीक है। हीट से किल होने के बावजूद जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया गया, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए अभी भी इंटैक्ट था, ठीक है। डीएनए में तो इंफॉर्मेशन थी ना प्रोटीन कोड बनाने की, तो डीएनए की वो पर्टिकुलर जीन जिसमें प्रोटीन कोड की इंफॉर्मेशन बनाने की इंफॉर्मेशन थी, प्रोटीन कोड बनाने की इंफॉर्मेशन थी, वो हीट से किल होने पर भी it never got damaged. It was intact. The information was intact, and that information passed to R strain, and R strain developed the protein code. Sorry, not the protein code, polysaccharide code, and became virulent. ठीक है, तो जो पॉलीसेक्राइड कोड एस स्ट्रेन में था, उसको बनाने वाली जीन आर स्ट्रेन में पास हो गई, और उसने आर स्ट्रेन में भी पॉलीसेक्राइड कैप्सूल बना दिया। तो इसका मतलब डीएनए वहां किल नहीं हुआ, डीएनए डैमेज नहीं हुआ। और ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज यू ऑल नो डीएनए मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है कि जब थोड़ा उसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जिसको वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, ऑप्टिमम से ज्यादा का टेम्परेचर डीएनए को दिया जाता है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है डीनेचर हो जाते हैं, डीएनए गेट्स डीनेचर, एंड बोथ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स दे अनवाइंड, दे डिटैच, ठीक है। बट द व्हेन दिस कंडीशन इज रिवर्टेड, जब वापस उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ले जाया जाए, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स वापस बाइंड हो जाते हैं, उनके बीच में दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं, एंड दैट कंप्लीट्स द डीएनए स्ट्रक्चर अगेन। सो दिस इज हाउ डीएनए इज सो स्टेबल, ठीक है। अब देखिए आरएनए की बात कर ले हम। आरएनए में आपने पढ़ा है कि जो आरएनए का शुगर मोइटी है, उसकी जो शुगर ग्रुप है कौन सा है, राइबोस शुगर। आरएनए में जो राइबोस शुगर है उसके 2 प्राइम एंड पे, सेकंड कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट है जो डीएनए में नहीं है, ठीक है। So at the 2 prime location of the ribose sugar in RNA, there is hydroxyl group present, and you know this hydroxyl group is very reactive, और ये डीएनए को बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल, सॉरी, ये आरएनए को बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल बना देता है, एंड दैट मेक्स आरएनए इजीली डिग्रेडेबल बाय एंजाइम्स, राइट। आरएनए इज आल्सो नोन टू बी अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का भी काम करता है, इसीलिए ये बहुत ही रिएक्टिव है। आरएनए कैटलिस्ट का काम कैसे करता है, आपने राइबोजाइम्स का नाम सुना है। राइबोजाइम इज अ कैटेगरी ऑफ एंजाइम which is actually not proteins, they are RNA,
ठीक है, तो राइबोसाइम आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स का काम करते हैं, इसलिए वो उनकी एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आरएनए में क्योंकि वो एंजाइम का भी काम, वो कैटलिस्ट का भी काम करता है, इसलिए बहुत रिएक्टिव है। एक्स्ट्रा 2 प्राइम एंड पे इसके राइबोस शुगर पे OH ग्रुप प्रेजेंट है जो इसे हाईली रिएक्टिव बनाता है, तो इसीलिए आरएनए जो है वो डीएनए के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, डीएनए केमिकली कम रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर व्हेreas आरएनए हैज गॉट अ सिंगल स्ट्रैंड। इसके नाइट्रोजनस बेसिस सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से एक्सपोज रहते हैं, राइट? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डीएनए हैज गॉट थायमीन एज द नाइट्रोजनस बेस whereas in RNA instead of thymine it has uracil and uracil is comparatively reactive unstable nitrogenous base। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आरएनए की अनस्टेबिलिटी उसकी रिएक्टिविटी का कारण है। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल बायोमोलिक्यूल देन आरएनए, दैट इज व्हाई इट इज अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज में थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशंस। यू नो, म्यूटेशंस आर द टूल्स फॉर एवोल्यूशन। अगर म्यूटेशन नहीं होगी जेनेटिक मटेरियल में तो एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स बदलेंगे नहीं अपने आप को और उनका एवोल्यूशन नहीं होगा, दे विल पैरिश। ओके, so both DNA and RNA, these molecules are able to change themselves structurally, they are able to mutate। RNA being unstable, it mutates very fast। ठीक है, इसीलिए ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए का जीनोम होता है उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। लाइफ स्पैन शॉर्ट होने का मतलब क्या है? वो बहुत जल्दी अपने स्ट्रेन को चेंज कर लेते हैं, वो इवॉल्व बहुत फास्ट करते हैं। यही कारण है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसमें आरएनए का जीनोम है, ये एक वायरस है जिसमें आरएनए है, ये बहुत जल्दी अपने आप को म्यूटेट करता है जिसकी वजह से इसकी आज तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है तो वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। ओके, यू नो आरएनए इट डायरेक्टली कोड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये हम आगे पढ़ेंगे कि आरएनए जो है वो सीधा ही ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बना सकता है, इसीलिए आरएनए अपने कैरेक्टर्स को आराम से एक्सप्रेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जबकि डीएनए, डीएनए को अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के लिए पहले आरएनए फॉर्म करना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए इज फॉर्म्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। ये आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है। ठीक है, मैम टॉट यू सेंट्रल डोग्मा, सो it was given in that DNA, on the basis of the information of DNA RNA is synthesized, that is transcription, and on the basis of the RNA proteins are formed which is called translation। ठीक है, तो इसका मतलब डीएनए अपने आप को प्रोटीन्स में बदलने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? आरएनए पे डिपेंडेंट है। पहले डीएनए के हिसाब से आरएनए बनेगा तभी तो प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्वड अराउंड आरएनए। आरएनए ज्यादा बेनिफिशियल मॉलिक्यूल है वहां पे क्योंकि आरएनए तो सीधे ही प्रोटीन बना देता है, जबकि डीएनए को पहले आरएनए में आरएनए बनाना है और आरएनए फिर प्रोटीन्स में बदले, आरएनए के हिसाब से प्रोटीन्स बनेंगे, राइट? So both DNA and RNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information। आप स्टोरेज कहाँ करते हो? आप कहीं कोई भी चीज कहाँ स्टोर करके रखते हो? आप पैसे कहाँ स्टोर करके रखना चाहते हो? बैंक में, क्योंकि वहां बहुत ही स्टेबल है, वहां आपके पैसों को कोई चुरा नहीं सकता, वहां से आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। सो यू गो फॉर स्टेबिलिटी। तो जब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम स्टेबिलिटी ढूंढते हैं तो यहाँ पूरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल ही एवोल्यूशन में चुना गया, दैट इज डीएनए। Therefore, among the two nucleic acids, the DNA is a better genetic material. Is that clear? Yes. So RNA world, इसमें मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगी that ends with the today's session. Which is the first genetic material? अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए माना बहुत स्टेबल है, पर सबसे पहले इवॉल्व क्या हुआ? धरती पे पहले क्या बना, डीएनए या आरएनए? कौन सा बायोमोलिक्यूल पहले बना? सो आपको ये बता दूं, डीएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। That is why the translation revolves around the RNA. Sorry, RNA was the first genetic material। ठीक है, RNA सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था जो धरती पे इवॉल्व हुआ था।
The essential life processes like metabolism, translation, splicing that evolved around the RNA. तो RNA सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल बना, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आई, स्ट्रक्चरल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस, उससे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल एक बना एवोल्यूशन में जो कि डीएनए था. तो पहले धरती पे क्या बना? आरएनए. आरएनए में मॉडिफिकेशंस होके फिर क्या बना? डीएनए. और आपको पता है जो बाद में बनता है दैट इज मोर स्टेबल. ठीक है, और वो इसीलिए ज्यादा प्रेफर्ड होता है क्योंकि एवोल्यूशन में वो इवॉल्व होके बेहतर मॉलिक्यूल बना है. राइट. आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट. ठीक है, आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है. बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो आरएनए से ही कैटलाइज होते हैं, जिनको कोई भी प्रोटीन वाला एंजाइम, एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीन, लेकिन कोई भी प्रोटीनेशियस एंजाइम उन रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं कर सकता जिनको आरएनए कैटलाइज कर सकता है. सो आरएनए हैज गॉट स्पेसिफिक रोल इन सम रिएक्शंस. ओके. RNA being a catalyst is very reactive, so it is very unstable. और हमने इसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर भी देखा है. 2 प्राइम एंड पे OH ग्रुप है, यूरेसिल बेस है, ये सब इसको अनस्टेबल बनाते हैं. ठीक है. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that makes it more stable. That is how, yes, गीता, RNA evolved to form DNA. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. ठीक है. Yes, Anuj, I just misspelled. I just, by mistake, it was a slip of a tongue. RNA is the first genetic material, not DNA. ठीक है? So RNA पहला genetic material है, फिर उसमें modifications हुई और फिर DNA बना. ठीक है? And now is it correct? DNA has evolved from RNA with chemical modifications that makes it more stable. DNA being double-stranded and having complementary strand further resists changes by evolving a process of repair. डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं, इससे उसकी और स्टेबिलिटी बढ़ गई, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जॉइंट है और वो अपनी रिपेयर खुद ही करता रहता है. यू नो, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपनी खुद की रिपेयर करता है. तो इसलिए इसमें सारा मैकेनिज्म है, सारी प्रॉपर्टीज है एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की. राइट. चाहे वर्ल्ड आरएनए से शुरू हुआ, चाहे धरती पे पहले आरएनए मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ, लेकिन आज प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, because of its stable nature. Right. So any doubts if you have in this session, you can post me. I have given you a form also. I have linked a form for your attendance, for your doubts, for your feedback. Right. So that ends the today's session. I hope you understood the Hershey and Chase experiment, which proved that DNA is a genetic material, and also you could understand the 4 prerequisites any biomolecule must have to act as a genetic material. Right? यही 2 चीजें आज हमने पढ़ी है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली हैं, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है. Now some assignment based on the today's concept. How did Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that DNA is a genetic material? तो आपको बताना है यहाँ डीएनए में उसने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया था क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस एलिमेंट स्पेसिफिक होता है, प्रोटीन में सल्फर स्पेसिफिक था, इसलिए उसने यहाँ रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, सल्फर का मीडियम लिया प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाने के लिए. So the whole explanation is there in the session. You can take it from that slide. Explain the steps of Hershey and Chase experiment with the help of a diagram and write the results of the experiment. Result जरूर अलग से देना है. Question number 3. Why DNA is the predominant genetic material than RNA? State any 3 reasons and explain. तो कोई 3 reasons आप बता सकते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है आरएनए से. ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज पहले देना. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरएनए में राइबोस शुगर में 2 प्राइम लोकेशन पे OH ग्रुप होता है जो डीएनए में नहीं होता. पहला पॉइंट ये जरूर लिखना है. दूसरा पॉइंट ये जरूर लिखना है कि डीएनए में यूरेसिल बेस है जो रिएक्टिव है, और जबकि आरएनए में यूरेसिल बेस है जो रिएक्टिव है और डीएनए में उसकी जगह थायमीन है जो स्टेबलर है. ठीक है. दूसरा पॉइंट ये जरूर देना है. थर्ड पॉइंट आप ये दे सकते हैं, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर that exposes its nitrogenous bases. DNA being a double stranded structure, that nitrogenous bases are fully secured between the 2 strands. ठीक है. तो ये आप इसके 3 पॉइंट्स बना सकते हैं. Which are the essential properties that must be possessed by a biomolecule which acts as a genetic material in organisms? तो चारों प्रॉपर्टीज जो मैंने हेडिंग्स में 1 2 3 4 करके दी हैं वो आपने यहाँ लिस्ट करनी है. ठीक है जी. अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएंगी तो इट विल बी अ बिगर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स. 3 मार्क्स में आता है तो सिर्फ आपको लिस्ट करनी है. ठीक है. चलिए
So that's all about the assignment. Complete the assignment today, right? And if you have any doubt, you can ask. Revise the contents. Most probably today is the last class before the vacations. Now vacations are on. Now tomorrow is Sunday. We won't be having a class on Sunday. And Monday onwards, you will be taught by your respective teachers of your schools in the Google Classrooms. So today being the last session, I've ended this much portion. And now next portion will be the replication, transcription, translation, which will be taught to you by your teachers. And if after the vacations, we'll be asked to teach you again on Facebook, I'll be really happy to teach you students. Thank you. Stay safe, stay at home, and take care. And study.